Thank you so much, Dr. Abiha. And it's always been my pleasure to be here as it's my alma mater. I have done my graduation and post-graduation from this Ajmal Khan Tibia College itself. And first of all, I would like to thank the organizing committee, especially organizing chairperson Professor Subuhi Fatma and co-organizing chairperson Professor Amina Naz, that they have selected me and gave me this opportunity to present you this deliberation on the Ilaj with Tadbir in menopause care. So, and basically the traditional wisdom which is hidden in this Ilaj with Tadbir, we will discuss onto that, and some of the present contemporary challenges or the understanding of this menopause. We will make the amalgamation or try to understand it all together, how it works. So, starting my deliberation, so in this we are going to discuss about what is menopause and how we can do the menopause care or prepare a individualized menopause care program for the ladies who have been undergoing the menopause, and the etiopathogenesis of the menopause according to Unani, and Ilaj with Tadbir or some of the regimenal therapies which helps in the post-menopause or menopausal care. So, coming to this, what is menopause? WHO has given this definition of menopause. What is menopause? Menopause is actually any woman who has undergone the permanent cessation of the menstruation and 12 consecutive months have been passed by without a period. This is the natural menopause, and there should be 12 consecutive months. The other thing is there should be no obvious physiological or pathological cause behind the cessation of the menses. If we are detecting any sort of physiological ailment or some sort of other pathological cause, like for example the women who have undergone the hysterectomy or they are undergoing some sort of hormonal replacement therapy or fertility treatments, in all those cases when there is absence of any physiological or pathological cause, as well as there is also an absence of any clinical intervention, कुछ भी नहीं हुआ उस lady में, and 12 months have been passed without having a period, that condition is known as menopause. This definition is according to the WHO. So, what it is, physiological phase, this is experienced by all women as a part of normal aging, and it is not a disease. This is completely accepted at all scientific platforms that this is a normal physiological process which occurs in the body of a female as a result of aging. At every scientific platform it has been confirmed and accepted. What happens in this phase? There is a loss of follicular activity as the woman no longer remains reproductive, because as we know that Tabiyat, which is the innate intelligence of the human body, knows very well that if a woman undergoes childbearing for very prolonged period, definitely it will hamper the health of the lady. So, there should be a fertile period, and after that no production or the reproductive phase should go on. So, for that purpose what happens, slowly and gradually as a result of the normal aging process, the follicular activity is being reduced, or it is finally in the postmenopausal stage it is completely lost. And what happens in this, when this process is going on, this is not usually a one-day process, but usually it takes a transition. It is a transitional phase. Slowly and gradually a woman body under a period of maybe 5 years or 3 years or 2 years, it undergoes the transition and the follicular activity is lost, and which results in the some changes like the hormonal imbalance as well as the aging process. So the symptoms which a woman
feels or observes during this menopausal period is because of the two main things. One thing is the hormonal imbalance, which is being created because follicular activity is no more, and another thing is there are also occurring the normal changes of the aging, which is being impacting on the other systems of the body also, like digestive system, like skin, okay? Everything, every system is being affected, not only the reproductive changes. So the menopausal symptoms are usually because of the hormonal imbalance and the aging process. Now coming to this, what range, not every woman undergoes the menopause on the exact same age or exact same date. There is a broad range. There is a long variation in between the females. Some of the females, they may undergo menopause as early as 42 years, or some may go up to the 60 years. So there is a range. It is not a one pinpoint year that a woman undergoes. And this, when a woman will experience menopause, depends on various factors like the demographic factors as well as the condition of the health of the woman herself when she is going to hit the menopause, as well as the genetic factors also determine when a woman is going to face this menopause. But a broad range can be described, which goes from 42 years to 60 years. Normally all women experience this physiological phase. Now stages, as you all know, there is a period of perimenopause, then menopause, and then postmenopause. Perimenopause is the phase when the body is preparing itself for the non-reproductive stage and the follicular activity is started slowing down. It is not abruptly stopped. It gradually and slowly starts to slow down. So that period is called the perimenopause, then menopause, then finally this follicular activity stops. This period is menopause. And then the postmenopause, that when 12 consecutive months have been passed without a period, and after that almost 5 to 6 years have been passed and the female body has been acclimatized to the hormonal changes and all these things, that stage is called the postmenopause. If we want to understand more about perimenopause, from this diagram we can understand that the premenopause period, follicular reduction period, and the follicular stoppage condition is postmenopause, and in between the transitional period is actually the perimenopause, and the female starts observing the symptoms in all these stages from the perimenopause, when even the follicular activity has been reduced, the woman starts complaining many of the menopausal symptoms like this. What are the, how it's going to affect the body, क्या क्या complaints आती हैं? These are brain fog, okay, usually an ability when you are not able to think clearly, work properly, the indecision is there. There could be a depression and anxiety, as well as there could be dry eyes and mouth. There could be thinning of the hairs and weight gain, sexual dysfunction and bone loss, hot flashes, dry skin and nails. So there are many symptoms which occur. But in Indian women, during a literature review, found that in the women in India, there is very much diversity in the symptoms also, which the different females reported according to the demographic area. For example, in Puducherry, this study was conducted and 96.6% of the females reported backache. Whereas this study which was conducted in Chandigarh, and in this study it was found that backache was present in only 7.3% of the females, and sadness or depression was in 48.6% of the females. Headache was found in 8% of the cases, and vaginal dryness in 28%, mood swing in 10%,
sleep disturbances in 29, and irritability in 58.6. So the variation of the symptoms is also there depending upon the demographic area, which demographic area a female belongs. And here you can see it, nowhere it is 100%. ठीक है, मैक्सिमम 58%, irritability, sadness or depression 48%. At least it means the 50% of the females are still healthy. ठीक है, 50% of the females are still healthy during the menopause age. So it is very important कि the condition of the female body before it hits the menopause. Menopause से पहले उस female की condition body की क्या थी, that also determines what type of the symptoms she will undergo and what would be the severity of the symptoms. Like this study, Chinese study है. In this also you can say maximum in 64.41 cases the females reported the insomnia. ठीक है, and fatigue was reported in 57.6% of the cases. So there is a long variation of the symptoms. So being a advocate of the traditional system of Unani system of medicine, what the point to think over is that why and how at least 40 to 50% females have been left. They are not showing any type of symptoms. Okay? And only it is reported in few. So this is the thing, what is those factors which protected or which do not allow the symptom to appear in a female. For example, if the insomnia is present in 64.41%, it means the remaining percentage of the female do not reported any insomnia. So what was the factor behind that insomnia do not occur in that person? Now, to summarize all, if we want to summarize, how we can summarize that in totality there are, अभी आपको जो लिस्ट दिखाई, जो स्लाइड दिखाई, there are variation of the symptoms, है ना. इनको अगर हम summarize करें, club together करें, what we can find कि there are vasomotor symptoms which are related to the vasomotor activity. There are symptoms which are related to the bone mineral loss of bone mineral density, and then urogenital atrophy and increased cardiovascular risk as well as the sexual dysfunction. Okay? So broad terminologies are there. For example, under vasomotor symptoms, what a woman may experience, she may experience a flush of the heat onto the face, which are known as hot flushes, or sometimes night sweats, sometimes depression, stress, anxiety. There is loss of bone mineral density also. So all these symptoms, if we club together, they can be categorized into these 5 categories overall. What happens? Menopausal loss of ovarian function. As you can see in this diagram, in the normal conditions, what is happening? It is the effect of the genetic factor, environmental and lifestyle factors which affect the brain as well as the uterus or the ovaries of a female. So, and in normal condition, hypothalamus releases the gonadotropic releasing hormone LH and FSH, and which affects the ovary, and in ovary it is the like the active follicles produces the egg and the normal estrogen level is maintained. This is under normal reproductive period. But what happens as the hypothalamus ages, as the woman ages, what happens? There is the function of the ovarian aging, वो भी reduce हो जाता है, और AMH as well as the inhibin B, all these things they also starts reducing, or finally there is decrease in ovarian follicle and mass and function, and which results in anovulatory cycles and finally the loss of the ovarian cycle. So these changes occur in the body. Now this is again a detailed description कि कैसे FSH, LH, ठीक है, and gonadotropic hormone as well as the inhibin B and anti-Mullerian hormone which is AMH, all these works together, and there is a gradual variation
विच कैन बी सीन कि रिप्रोडक्टिव में क्या है उसके वेरिएशंस, मीनोपॉजल ट्रांजिशन में क्या हार्मोनल चेंजेस हैं, एंड पोस्ट मीनोपॉजल उसमें क्या चेंजेस हैं, ये इसकी एक फिजियोलॉजिकल वो है. पैथोजेनेसिस ऑफ पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, कि हाउ अ वुमेन बॉडी अंडरगोज shift from a healthy bones towards the demineralization of the bones in response to the different hormonal changes which occur in the human body. आप लोग का लेक्चर भी था सुबह में, आई होप ऑस्टियोपोरोसिस का, उसमें आपने डिटेल में पढ़ा होगा इसको. नाउ मीनोपॉज में क्या हुआ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी चेंजेस आते हैं. ठीक है, मीनोपॉज और एजिंग की वजह से क्या हुआ, फिजिकल एक्टिविटी कम हुई, mood stability and sarcopenia which results in the obesity. ठीक है, like this, फिजिकल इनएक्टिविटी हो रही है, मूड स्टेबिलिटी, सार्कोपीनिया हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है. ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस की वजह से हो रही है. लेकिन ये जो है मीनोपॉजल एस्ट्रोजन डिक्लाइन जो है, इसकी वजह से भी चेंजेस हो रहे हैं, और ये changes which are going to clubbing together to form the atherosclerosis and the ischemic heart disease and stroke. So together the hormonal transition which occurs in the menopause as well as the normal aging process, they all club together to give you the cardiovascular disease in a postmenopausal woman. तो अब फिर ये एक उसकी, अब तक हमने क्या समझा, what is the actual physiology and psychological changes, what are the hormonal changes which are occurring in a human body, एक उसकी एक overall picture आपको दी. So make you understand that it is the menopausal stage is actually the amalgamation of two things, the normal aging process as well as the hormonal changes which occur. They together bring about the symptoms as well as the changes which occur in the human body, human female. So now coming to this part which mainly relates to me, that is how we are going to give a woman in the stage of menopause or post-menopause stage or perimenopause stage a healthy state of life. How and what can we do to minimize her suffering, her symptoms through ilaj with tadbir, right? So now we are going to discuss that, and we will also touch the part which is the yoga. Yoga basically is what, in this we do the movements in a very slow pattern, slow and with controlled breathing pattern. So actually it relates to our riyazate batiya, जिसमें कि क्या होता है, there are slow movements but they are done for a prolonged period of time. तो हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर हम इसकी हिस्ट्री में देखें कि भाई सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही बता दिया था कि भाई मीनोपॉज जो है हिट करती है औरत 50 इयर्स में. इब्ने सीना ने 40 to 50 इयर्स में बता दिया था. मीन्स दीज आर द टाइम पीरियड यू कैन सी 300 BC, 980 AD, in the 8th century AD and in the 100th century AD, ये सब चीज़ें हो रही थी. People were reporting and studying about the menopause, menopausal symptoms, what are the causes of the symptom, cause of this menopause. So everyone was working on that. तो हम उसमें देखेंगे, like इब्ने सीना ने बहुत डिटेल में बताया. उसने बताया कि menopause is the age which varies from 35 to 40 to 50 years. और उसने सिम्टम्स भी बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किए हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स विच अ वुमेन अंडरगो व्हेन हर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स. ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में हमको, एंड व्हाट आर द कॉज, इटियोपैथोजेनेसिस बहुत डिटेल में हमको अल कानून फी तिब में मिलती है. सो अब इसीलिए हम इसको जानेंगे पहले कि इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन फिर इसकी इटियोपैथोजेनेसिस क्या है. व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी why it is important to know the etiopathogenesis in Unani? Until unless you exactly do not know how you are going to formulate a menopausal care program, आपको जब तक उसकी एग्जैक्ट रूट कॉज नहीं पता होगा
आप इंडिविजुअलिस्टिक मीनोपॉजल प्रोग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि ह्यूमन फीमेल सारी एक जैसी नहीं होती हैं, राइट। हमने इसको डिस्कस किया, डेमोग्राफिकली भी देखा और जो है दूसरे उसकी हेल्थ कंडीशन में भी देखा कि बहुत वेरिएशन है, सिम्टम्स में भी वेरिएशन है। तो फिर आप कैसे इसको प्रोग्राम करेंगे? एट द प्रेजेंट टाइम कैसे ट्रीट किया जाता है मीनोपॉज को? इट इज़ ओनली थ्रू द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी व्हाट दे कैन गिव, है ना, कि उन्होंने कहा ये हार्मोन कम हो रहा है, वी हैव डिटेक्टेड, सो नाउ गिव दैट हार्मोन। और फिर हमने भी उन्हीं के उसी में चलना शुरू कर दिया। व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग, वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द हर्ब्स। उन हर्ब्स को हमने ढूंढना शुरू कर दिया विच कंटेन द फाइटोएस्ट्रोजेंस, और हम उन हर्ब्स को दे दें तो वो हार्मोन रिप्लेसमेंट, मतलब वी आर थिंकिंग ओनली ऑन द टर्म्स ऑफ द other contemporary system of medicine, कि what they are thinking, okay they give estrogen so we should also give the estrogen, but rather it is more important you should understand what is the etiopathogenesis which can be attributed to the this menopause in the Unani conceptual framework, है ना। ओनली देन यू कैन फॉर्मुलेट कि एक मीनोपॉजल वुमेन को ये डाइट दीजिए, उसको इस हवा में रखिए, उसको ऐसी एक्सरसाइज कराइए, उसको ये वाली तदाबीर कराइए, एंड इवन इन तदबीर ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द तदबीर, कितनी बार आप उसको दे रहे हैं, कंडीशन ऑफ द तदबीर, ठीक है। फिर आप उसके साथ जो हर्ब्स ऐड कर रहे हैं वो सब कुछ चेंज होता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द इटियोपैथोजेनेसिस के कॉज क्या है मीनोपॉज का, है ना। तो इसका जो है इब्न सीना ने जो डिस्क्राइब किया है, उसने कहा कि ये तकाज़े उम्र के बिना पर हो जाता है, एज के उस पे हो जाता है। एंड द टर्मिनोलॉजी ये उसने यूज़ करी तबई इनक़िताए इंतहाए हैज़। सो दिस टर्मिनोलॉजी इज़ प्रेजेंट इन अल कानून फ़ी तिब फॉर द विच यू कैन टेल टू द विच वी कैन एट्रीब्यूट टू द मीनोपॉज। मीनोपॉज को अगर ऐसे हम ढूंढते हैं कहीं किताबों में, वी नेवर फाइंड अंडर एनी टर्मिनोलॉजी मीनोपॉज, है ना। लेकिन यहाँ पर इसने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया एंड उसने बताया कि तबई इनक़िताए इंतहाई हैज़ है, और उसने मुद्दत भी बता दी कि 60 से 60 साल, कहीं पे 40 साल और कहीं पर 50 साल, इतनी वेरिएशन मिलती है। एंड उसने ये भी बताया कि ये मर्ज नहीं है, ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो हमने वहाँ पे साइंटिफिक प्लेटफॉर्म्स पे ये बात देखी कि एवरीबडी एक्सेप्टेड कि इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। द सेम थिंग इज सेड बाय द इब्न सीना कि इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिजीज, रादर इट इज़ अ फिजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द ह्यूमन फीमेल बॉडी। सो इसके बहुत सारे कॉजेज़ उसने डिस्क्राइब किए हैं, अभी हम इसको समराइज़ कर देंगे। आई हैव टेकन द होल पैराग्राफ एज इट इज़, ताकि आप लोग भी देख सकें उसको कि इन बुक हाउ इट इज़ डिफाइंड। रहम में उसने कहा इसका कॉज जो है ख़ुद रहम के अंदर हो सकता है, उसने कहा हरारत की ज़्यादती हो सकती है, उसने कहा इसका सबब चर्बी या गलीज़ अखलात की कसरत हो सकती है, खून की गिलज़त हो सकती है, लागरी हो सकती है, क़ुव्वत हाज़मा इतना कवी हो गया कि हैज़ के लिए कोई फुजला ही नहीं बचा, ज़ोफ़े जिगर उसने बताया, और उसने कहा ओवरऑल खून की तौलीद जो है वो कम हो जाती है, या फिर ख़ुद ह्यूमन बॉडी के अंदर इस्तफ़राक की ज़्यादती हो, मींस वो लेडी बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सेसिव वर्क करने वाली हो तो भी ये चेंजेस मिल जाते हैं, ठीक है। फिर उसने डिस्क्राइब किया डिटेल में कि क्या क्या उसके साथ जो है वो सिम्टम्स मौजूद होते हैं। ऑल दीज सिम्टम्स वेरी मच coincide with the symptoms which are mentioned in the present scientific platform, like related to the digestive system, related to the vermihar, related to the nerves and nervous system, relate malachulia like depression, anxiety, related to the respiratory system, pain in the joints, heaviness in the body, ठीक है, and बेचैनी which is the anxiety. So all these things has been described. So if we look into that, what we can see that the human age has been divided into how many stages?
कौन कौन सी स्टेजेस हैं? सिने नमू, फिर सिने शबाब, सिने कहूलत, और उसको सिने कहूलत को सिने यास भी कहते हैं, एंड देन सिने शेखुकत। तो 4 स्टेजेस में कैटेगराइज किया है। तो जो सिने कहूलत या सिने यास के जो सिम्टम्स हैं, वो सारे सिम्टम्स जो हैं वो कोरिलेट करते हैं विद द मीनोपॉज, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, और ये जो डिवीजन हुआ है, दिस डिवीजन इज अकॉर्डिंग टू विच थिंग, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट? इट इज अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑफ द रतूबत गरीजिया एंड हरारत गरीजिया, that in a normal condition human body there is the innate heat which is normally present, and there is a innate fluid which is normally present. And as the human body ages, what happens? There is a reduction in the innate fluid which is ratubat gharizia, and there is a reduction in the innate heat which is हाँ हरारत गरीजिया। तो दोनों के अंदर रिडक्शन आता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक। तो इतना रिड्यूस हो जाता है, ये जो है रुतूबत गरीजिया प्रोडक्शन इतना कम हो जाता है इन सिनेयास में कि हरारत गरीजिया एज अ रिजल्ट उसका क्या होता है, फिर पावर भी बॉडी की स्टार्ट्स वीकनिंग। ओवरऑल द पावर्स एंड फैकल्टीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो भी कम होने लगती हैं। और Cineas is identified with the coldness as well as the dryness, दोनों चीज़ें। एंड खिलते दम प्रोडक्शन डिक्रीजेज, ब्लड भी कम हो जाता है। दिस लीड टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड विद एहतबास तम सच एज हेडेक, जनरल माइल्जिया, एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन, वेट गेन, हिरोटिज्म, बैक एक, नेक पेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट एंड आर्थ्रेल्जिया, nervousness and the insomnia. So you can see okay, how in detail they have described, and they also said that मुशरिकात और रहम मीन्स with the involvement of the uterus की वजह से भी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आते हैं। और बुखारात from the उरूक़ रहम passes via blood to the other organs of the body including head, brain, heart, stomach, musculoskeletal system, which leads to the different type of symptoms, menopausal symptoms which a female undergoes. So overall क्या हो रहा है, एक menopausal woman female की बॉडी में हरारत गरीजिया क्या हो रही है, रिडक्शन की तरफ जा रही है, और रतूबत गरीजिया भी डिप्लीट हो रही है। सो इफ़ वी वांट कि जो है हम क्या करें कि उसका हम उसको इम्प्रूव कर सकें, उसको कुछ कर सकें, तो हमें क्या करना होगा, मीनोपॉजल केयर में हमें क्या करना होगा? थिंग्स शुड बी दैट वी शुड प्रोटेक्ट ऑल द एनी वे फ्रॉम बाय एनी मीन्स बाय अडॉप्टिंग दोज असबाब सित्ता ज़रूरिया एंड तदाबीर विच प्रोटेक्ट्स द रतूबत गरीजिया। व्हेन रतूबत गरीजिया will remain intact, it will be preserved. As a result, what will happen? There would be the innate heat, हरारत गरीजिया will maintain in the body. तो प्रिजर्व करना है रतूबत गरीजिया को एंड हरारत गरीजिया को मेंटेन करना है, तो फिर हमारी जो मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं दे कैन बी रिड्यूस। दिस इज द समरी ऑफ द सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इब्न सीना के अल कानून में अगर हम उसको समराइज़ करें, उसने जो सिम्टम्स बताए हैं वो सारे ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स हैं जो कि आज के दौर में हम देख रहे हैं। और वही उसने कहा कि मेंस्ट्रुअल सिजेशन का जो टाइम पीरियड होता है इट कोइंसाइड्स विद सिने इन्हितार, और उसमें जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। सिने कहूलत में क्या हो रहा है, इसके अंदर बुरूदत बढ़ रही है, ठीक है। देखिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर, कोल्ड एंड यबूसत ये बढ़ रहा है, ठीक है। ये किस मिजाज से कोइंसाइड करता है, किस मिजाज से कोइंसाइड करता है, सौदा से, ठीक है। तो ये यहाँ पर इट मीन्स देयर इज जो हमारा टेम्परामेंट है इट इज गोइंग टूवर्ड्स द
Saudavi during the menopausal stage, as well as body loses its stability and initiate the process of deterioration. क्वांटिटी ऑफ रतूबत गरीज या कम हो रही है, रतूबत गरीब या अभी बड़ी नहीं होती है, इन द मीनोपॉज स्टेज नहीं बड़ी होती है, लेकिन पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज क्या होता है, रतूबत गरीबिया. कौन सी रतूबत? विच इज एक्यूमुलेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म. वो जो होती है वो रतूबत गरीब या एक्सटर्नल रतूबत जो होती है वो बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर जमा हो जाती है, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इम्तला. ठीक है, इम्तला हो जाता है उसके अंदर. सो एंड दिस स्टेज पावर्स स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. आपकी जो कुआज हैं वो भी डिक्लाइन होने लगती हैं. इस अगर हम ऑर्गन लेवल पे बात करें, बॉडी की क़ुव्वत हाज़िमा भी, क़ुव्वत जाज़बा भी, क़ुव्वत दाफ़िया भी और क़ुव्वत मास्का जो है, ये सब जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है. तो ओवरऑल हमको क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि एक पोस्ट मीनोपॉजल केयर एक किसी इंडिविजुअलाइज्ड किसी पर्सन के लिए तैयार करें, तो हमको क्या करना होगा, किन पॉइंट्स को हमें अपने दिमाग में रखा होगा. दैट वुड बी करेक्शन ऑफ द मिजाज, कि बारिद और याबिस की तरफ जा रहा है तो हर वो ऐसा काम करना होगा जो कि इस टेम्परामेंट को इंक्रीज ना करे. द चॉइस इन द असबाब सित्ता ज़रूरिया विल डिपेंड ऑन कि दैट वी मे नॉट इंक्रीज एनी बुरूदत और यबूसत. हवा ऐसी कि जिसमें बुरूदत यबूसत ना बढ़े. ठीक है, खाना ऐसा कि जिसमें बुरूदत और यबूसत ना बढ़े. ऐसा खाना जो बारिद और याबिस होता है. याबिस जितनी भी डाइट होंगी, ड्राई डाइट जितनी भी होंगी, दे विल इंक्रीज द सौदा. तो ऐसे करके इसी तरह से हरकत व सुकून बदनी ऐसी जो कि बुरूदत और यबूसत को ना बढ़ाए. ठीक, और हरकत व सुकून नफसानी में वो इमोशंस और फीलिंग्स जो कि बॉडी के अंदर ड्राइनेस ना प्रोड्यूस करें. ठीक, एग्जैक्टली द नोम व यग्जा आवर स्लीपिंग एंड अवेकनिंग पैटर्न, कि जिसमें कि क्या हो, ड्राइनेस ना बढ़े. ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमको करनी होंगी. एंड ह्यूमोरल बैलेंस क्रिएट करना होगा थ्रू आवर असबाब सित्ता ज़रूरिया एंड तदाबीर, और इस्तफराग व एहतबास भी. और तो हमारा इलाज बिल ग़िज़ा हो गया ना. इलाज बिल तदबीर, कुछ ऐसी तदाबीर जो कि क्या करती हैं, विच हेल्प्स इन दिस थिंग, कि जो आपका टेम्परामेंट है उसको वो ना होने दें, मीन्स बुरूदत और यबूसत की तरफ ना जाने दें. रादर दे शुड मेंटेन द इन्नेट हीट. वो सारी तदाबीर जो है हमको अडॉप्ट करनी होंगी. लाइक कौन कौन सी तदाबीर जो कि हमको मिलती हैं इन द क्लासिकल टेक्स्ट. दीज आर मसाज और दलक लयन, रियाज़त मुसक्किना, हम्माम, आबजन, नुतूल, हम्माम, फस्ट ऑफ रागे साफिन एंड हिजामा, इस्तफराग एंड munzij istafrag by means of munzij musil medicine also. All these ilaj bi tadbir can be adopted in during for the formulation of a post menopausal regime for any woman. ठीक है, डाइट के थ्रू सारे असबाब सित्ता ज़रूरिया का जो मैनिपुलेशन है वो, साथ में तदाबीर. तदाबीर क्या है, दे आर रिलेटेड टू द इस्तफराग एंड एहतबास. इस्तफराग और एहतबास वाले एरिया से वो कोइंसाइड करती हैं. तो ऑल दीज तदाबीर जो हैं, वो सारी तदाबीर जो हैं, दे विल हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग अ रिजीम फॉर द पोस्ट मेनोपॉजल केयर. नाउ कमिंग, ये तो आपको पता ही होगा, यूनानी में इन्हीं एरियाज़ में काम है. ठीक है, स्किपिंग इट. नाउ दीज आर द फ्यू ऑफ द तदाबीर जो कि यूज़ हो रही हैं. बट इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, what is more important is this, that while adopting the type of the procedure, if you are choosing any one of the procedure, what things you should keep in mind, what is the frequency and duration of the regimen. क्योंकि frequency and duration जो है वो change कर देगी the outcome of the therapy. ठीक है, what herbal medicines you are using during those therapies, उन therapies के लिए, लाइक आबजन के लिए आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, अरोमा थेरेपी के लिए, शमूम के लिए आप कौन सी थेरेपी, कौन सी हर्बल मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं. दैट विल चेंज द आउटकम ऑफ द थेरेपी इटसेल्फ. थेरेपी का ही आउटकम जो है वो चेंज कर देगा. ठीक,
सो दिस इज़ हाउ कि डिफरेंट टाइप की हमारी ये हैं. इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट जिनकी कि हम हो चुका है जिनके ऊपर के काम, एंड वी हैव गॉट some of the things we have got scientific evidence, and for most of the things we have no scientific evidence, rather we rely on the it's mentioning in the classical literature कि classical literature में क्योंकि mention है, that's why we can explore. और अभी तक the इंटरकनेक्शन बिटवीन द इलाज विद तदबीर एंड मीनोपॉज अभी तक इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ है. सो वी डू नॉट फाइंड द साइंटिफिक एविडेंसेस फॉर दैट, बट फॉर फ्यू ऑफ द थेरेपीज वर्क हैज़ बीन डन विच आई हैव ट्राइड टू प्रेजेंट हेयर. जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से आई शुड मेक इट फास्ट, क्योंकि जो है आप लोग भी बोर हो रहे हैं लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो यह खाने के बाद थके हुए हैं, तो इसलिए इसको मैं जल्दी से स्पीड अप करती हूँ. एंड आफ्टर दिस वी वुड बी हैविंग अ योगा सेशन ऑल्सो. तो उस योगा सेशन में आप लोग में भी जो है और थोड़ा रिवाइव हो जाएंगे, थोड़ा रिजुविनेट हो जाएंगे. तो इसलिए जल्दी से मूविंग फास्ट फॉरवर्ड. दलक है, ठीक है. दलक कौन कौन से मीनोपॉजल सिम्टम्स के ऊपर काम करता है? हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, हेडेक्स, मूड स्विंग्स, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिलैक्सेशन इम्प्रूव करता है, स्लीप इम्प्रूवमेंट है. और हमें कौन सी दलक लेनी है, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, विच द टाइप ऑफ दलक यू आर गोइंग टू चूज. दलक के कभी मत कर दीजिएगा मीनोपॉज में, ठीक है. आप कौन सा चूज करेंगे जो कि प्रोटेक्ट कर रही हो आपकी रतूबत गरीजिया को एंड मेंटेन कर रही हो हरारत गरीजिया को. वो कौन सी है? विच इज़ द दलक लय्यन कसीर, ठीक है. ये है दलक लय्यन कसीर. कुछ स्टडीज़ थी जो हुई है इसके ऊपर, दलक के ऊपर एंड मीनोपॉज के ऊपर, और कुछ पैरामीटर्स लाइक द मीनोपॉज रेटिंग स्केल वाज यूज्ड. 90 वुमेन के ऊपर ये स्टडी हुई थी एंड इट वाज फाउंड मसाज वाज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग मीनोपॉजल सिम्टम, ठीक है. सिमिलरली ऑन 44 वॉलंटियर्स काम हुआ था, जिसमें कि इंसोम्निया सीवियरिटी इंडेक्स, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, मीनोपॉज क्वालिटी लाइफ क्वेश्चनेयर. तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पाया गया. फाइनली डिक्रीज इन द सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू BDI, ISI एंड मैनकोल क्वेश्चनेयर वॉज फाउंड. तो ओवरऑल स्टडी सामने आई हैं विच को रिलेट्स दैट दलक डेफिनेटली इम्प्रूव्स द पोस्ट मीनोपॉजल सिम्टम्स. लेकिन what should be kept in mind? The choice of the type of the dalak and the oil which you are going to use and the duration and frequency of that dalak. ठीक, इनको हम and that will may vary according to the women also. वुमेन का बॉडी का स्टेटस कैसा है, ओबीज है, ड्राई है, ठीक है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, वो भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन करता है. रियाजत एज यू ऑल नो एक्सरसाइज के ऊपर तो बहुत काम हो चुका है, ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोड जिसके ज़रिए से हम इननेट हीट जो है वो अपनी मेंटेन रख सकते हैं. इसके ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज़ सामने आ चुकी हैं. बोन हेल्थ के ऊपर एक्सरसाइज का बहुत इम्प्रूवमेंट है. स्लीप क्वालिटी, मसल मास प्रिजर्वेशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड हेल्दी वेट मेंटेन करने में दिस इलाज विद तदबीर रिजीम हेल्प्स अ लॉट. उसमें आप लेकिन कौन सी एक्सरसाइज सिलेक्ट करेंगे, कौन सी? रियाजत की भी तो अब करा दीजिए, उसको हैवी एक्सरसाइज करा दीजिए. विल इट बी सूटेबल फॉर द पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन? कौन सी हमें चूज़ करनी है? रियाजत बतिया, जो अभी हम बात कर रहे थे कि स्लो मूवमेंट्स विद अ prolonged period of time, they should be done in a woman of perimenopausal age or menopausal or postmenopausal age. हर एज में जब वन इट इज़ इन द menopausal stage आप यही एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे, बिकॉज हैवी एक्सरसाइज क्या करेगी, रुतूबत गरीजिया को फना कर देगी. इट विल प्रोड्यूस ड्राइनेस इन द बॉडी, जो कि आप नहीं चाहते. ड्राइनेस जो है वो और मीनोपॉजल सिम्टम्स को बढ़ा देगी. तो नॉट मोर देन 30 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक आपको करना है, नहीं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस प्रोड्यूस हो जाएगी विच विल फर्दर हार्म द मीनोपॉज वुमेन. तारीख में डायफोरेसिस है, इसमें क्या होता है, हम वो उसको स्वेट को प्रमोट करते हैं, स्वेट को इंड्यूस करते हैं. यही हमाम में भी करते हैं, हम स्वेट को इंड्यूस करते हैं. बट
for how long a woman should stay in hammam, ठीक है, and the intensity of the heat which is in the hammam, whether it is a dry heat or whether it is a wet heat, क्या आप यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ जो है वो आउटकम को चेंज कर देगा उसकी। तो कीपिंग इन माइंड कि वो चीज़ अडॉप्ट करिए जो रतूबते गरीजिया को क्या करें, प्रिजर्व करे एंड हरारत गरीजिया को मेंटेन रखे। ये चीज़ अगर आपने उसके एग्जैक्ट उसूल इलाज को अडॉप्ट करा और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया इन डिफरेंट थेरेपीज, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट, अदरवाइज यू मे एग्रवेट द सिम्टम ऑफ अ मीनोपॉजल वुमेन। ठीक है, इसमें नहीं डिटेल में जा रहे, बस इसमें यही है कि यही है, नेवर ओवर स्टे एंड नेवर ओवर डू हम्माम, नहीं करना है। ठीक है, एवरेज करना है, मिनिमल हीट। देन दिस इज द इनकबाब। ठीक, इनकबाब भी लोकलाइज्ड भी हो सकता है और जनरलाइज। हम्माम में इट इज जनरलाइज्ड एंड हेयर इट इज लोकलाइज्ड। नाउ दिस काइंड ऑफ इनकबाब, इनकबाब अमूमी, ओनली द हेड पार्ट इज आउट। ठीक है, ओनली द हेड पार्ट इज आउट एंड द होल बॉडी इज एक्सपोज टू द स्टीम और द हीट। यहाँ पर भी ड्यूरेशन, इंटेंसिटी ऑफ द हीट, द मेडिसिन्स विच आर यूज्ड, दे विल ऑल बी चूजन अकॉर्डिंग टू द उसूल इलाज। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। नाउ दिस इज द सोना, ड्राई हीट। ड्राई हीट में क्या होता है, क्या यूज होता है इसके अंदर, इंफ्रारेड रेज फॉर हीटिंग और या फिर कोल यूज होता है। तो मीनोपॉजल वुमेन में यूजिंग ऑफ द ड्राई हीट कहीं से भी सपोर्ट नहीं करता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू शुड यूज़ द वेट हीट, और वो उसके डिफरेंट फॉर्म्स जो अभी आपने देखे, हम्माम हो गया, इनकबाब हो गया, इनकबाब उमूमी हो गया, उसको हम चूज़ करेंगे। सिमिलरली द तकनीद ऑफ फर्मेंटेशन, यहाँ पर भी क्या है, लोकलाइज्ड है, मोर लोकलाइज्ड, कि इफ अगर द ache and pains are localized to a smaller part of the body, तब फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो फिर उसकी में भी हम वही उसूल इलाज को सामने रखते हुए हम उसको करेंगे। नाउ कम्स द हिजामा एंड कपिंग। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम इन द पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन हो चुका है, बट देयर इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस और रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल्स भी कम हैं, मेथडोलॉजी भी कहीं कहीं पर जो है वो बहुत क्लियर नहीं है। दैट्स वाई वेरी लिटिल एविडेंस इज प्रेजेंट फॉर दिस टाइप ऑफ थेरेपी। और इस थेरेपी में आपको मालूम ही है इतने तरह की होती है, वेट, फ्रायर, दिस। नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्राई कपिंग, इसके अंदर क्या है, ड्राई कपिंग और द फायर कपिंग। इसमें क्या है, स्टडीज आर देयर विच टेल्स यू दैट दीज ड्राई कपिंग थेरेपी के सेशंस जो हैं, दे हैव प्रोमोटेड द रिलैक्सेशन because they improve the blood flow to the affected area and balance the hormones through its effect on the nervous system. तो it is not a one time therapy कि आपने एक बार उसको ड्राई कपिंग कर दी और उसको मीनोपॉजल सिंड्रोम में या मीनोपॉजल सिम्टम्स में बेनिफिट आ जाएगा। रादर यू हैव टू मेक द सेशंस, आपको उसके सेशंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बिकॉज इट इज़ इम्प्रूविंग द ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड एरिया, पेरिफ्रीज में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर रहा है। ठीक, तो आपको इसके सेशंस प्रोग्राम करने होंगे और डिपेंडिंग अपॉन द लेडी और द टेम्परामेंट ऑफ द फीमेल आप उसको जो है बनाएंगे, उस मीनोपॉजल केयर प्रोग्राम को, इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम को बनाएंगे। स्टडीज़ आ चुकी हैं इसकी। मूविंग कपिंग भी होता है, मूविंग कपिंग और ड्राई स्टैटिक कपिंग में उसमें एक जगह आपने छोड़ दिया, मूविंग में क्या किया, यू विल ग्लाइड ऑल ओवर द सरफेस। इनकी क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसमें भी हम वही बात करेंगे, उसूल इलाज को दिमाग में रखेंगे, कौन से ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि जो हमारा उसूल इलाज है वो क्या है, विच इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ रुतूबत गरीजिया एंड द मेंटेनेंस ऑफ हरारत गरीजिया। ठीक, तो उस उसूल इलाज को रखते हुए हम सामने हम इसके सेशंस जो हैं वो बनाएंगे। ग्लाइडिंग कपिंग के ऊपर हो चुकी हैं स्टडीज़। एक स्टडी उसमें से ये है कि जब ब्लैडर मेरिडियन जो है उसके ऊपर
चाइनीज़ स्टडी है ये, लेकिन इट वर्कड कि ब्लैडर मेरिडियन पे जब ग्लाइडिंग कपिंग की गई तो इट इम्प्रूव्स इंसोम्निया, पुअर मेमोरी, डिप्रेशन एंड एकिंग, द पेन, ठीक है, इन सब में जो था उसको रिडक्शन मिला। नाउ वेट कपिंग, वेट कपिंग में भी हमको मिला है फ़ायदा हॉट फ्लैशेस में, नाइट स्वेट्स में, मसल एक्स एंड जॉइंट पेन और रिलैक्सेशन, इट प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन। फर्स्ट के बारे में, फर्स्ट वी ऑल नो कि फर्स्ट में क्या करते हैं, वी अलाउ द ब्लड लेटिंग फ्रॉम द सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब और द लोअर लिम्ब, ठीक। तो उसमें रिकमेंड की गई हैं इन द मीनोपॉजल स्टेज में रगेसाफन, रगेसाफन इज रिकमेंडेड फॉर द मीनोपॉज, इट इज मेंशन्ड इन अल कानून, ठीक है। देन आबजन, इट कुड बी अ वेरी गुड प्रोसीजर, लेकिन इसमें भी उसूल इलाज को सामने रखते हुए आप इसका जो जुशांदा जो तैयार करेंगे, ये जो जुशांदा तैयार करेंगे इसके अंदर का, वो उसूल इलाज को सामने रखते हुए आप जुशांदा तैयार करेंगे और उसकी ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी जो है वो भी उसी तरह से डिज़ाइन करेंगे कि आप जो है देखें कि उसके अंदर जो है वो रतूबत गरीजिया उसकी या ड्राइनेस ना इंक्रीज़ हो उसकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह से। ये स्टडीज़ हैं जिसमें कि पाया गया कि विजाइनल ईचिंग एंड डिस्कम्फर्ट में और इन सब में जो था आबजन वॉज वन ऑफ द बेस्ट तदबीर विच कैन बी गिवन। फिर शमूम या अरोमा थेरेपी, साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग दोनों पे इसका काम देखा गया, स्पेशली डिप्रेशन, इंसोम्निया, ठीक है, इन सब में जो है इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट था। इसमें दीज आर हॉट फ्लैशेस में भी काम किया। हॉट फ्लैशेस एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, अ कंडीशन ऑफ द वेरी फ्लशिंग ऑफ द फेस विद फीलिंग अ इंटेंस हीट ओवर द फेस, तो इन सब में जो है उसको फ़ायदा मिला, पेन में फ़ायदा मिला, मूड स्विंग्स में फ़ायदा मिला। सो कमिंग टू हरारत, दिस आवर रियाजत बतिया ऑल्सो, ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट how we will design a post-menopausal care program of इलाज with तदबीर keeping in mind the उसूल इलाज, ठीक है, उस उसूल इलाज को, because there is not much scientific evidence is available regarding the इलाज with तदबीर and menopause association, rather we would be the pioneer if we will start doing the or programming the different scientific research protocols related to the different therapies and its effect in the menopause, है ना। तो जैसे जैसे हम करेंगे, बट हमको इसकी एटियोपैथोजेनेसिस क्लियर हो गई और हमको कैसे फॉर्मुलेट करना है, ठीक है, कीपिंग इन माइंड द उसूल इलाज, वो हमें क्लियर हो गए। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट जो कि योगा है, एंड it is a kind of, as I have already discussed what it is a kind of रियाज़त बतिया which is most beneficial, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। क्या? बिकॉज इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, बहुत ही लाइट मूवमेंट्स करते हैं, स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स करते हैं फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इट डू नॉट इंक्रीज द ड्राइनेस इन द बॉडी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कि ड्राइनेस इंक्रीज नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्टिव वर्कआउट नहीं करते हैं तो रतूबत गरीजिया भी तहलील नहीं होती है। सो देयर आर इमेंस नंबर ऑफ स्टडीज़ विच हैव सपोर्टेड the effect of the yoga in the minimizing the post-menopausal symptoms. So now, actually what is yoga? Yoga has two parts. One is the physical movement part, ठीक है, physical movement जो आपको करना है, body movement जो करना है वो, plus it also has the second component which is breath control techniques. There is a synchronization between the body movements as well as the breath. आपकी जो breath है वो और body movements के बीच में synchronization होना चाहिए, which is more important. तो जब इन points को ध्यान रखते हुए जब योगा किया जाता है तो फिर जो है बहुत ज़्यादा effective results हमको मिलते हैं for minimizing the post-menopausal symptoms, ठीक है। सो फाइनली टू कंक्लूड कि आजकल जो है हमारे पास
क्या चीज़ है जो हमसे कहा जाता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करा लीजिए, बट इट कम्स विद द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एज वेल एज द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। और हमने भी फिर क्या करा, उन्हीं के पैटर्न पे कि सप्लाई ऑफ द एस्ट्रोजन टू द बॉडी, हमने भी क्या करा, हमने भी फाइटो एस्ट्रोजेंस ढूंढने शुरू कर दिए कि शतावरी में मिलता है कि हब्बे अजगन में मिलता है, कि हमने भी उनके उस पर, ठीक है, दैट अप्रोच इज़ ऑल्सो ओके, इन सम केसेस वी मे रिक्वायर दैट, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम कुछ ऑल्टरनेटिव एंड सेफ मेथड्स ढूंढें, जो कि एक्यूपंक्चर, इलाज विद तदबीर, योगा, हिप्नोसिस, इन सब के थ्रू हम जो है एक बेटर इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम फॉर अ मीनोपॉजल केयर कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परामेंट ऑफ द फीमेल हु इज सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ द मीनोपॉजल सिंड्रोम, ठीक है। सो फाइनली मोर साइंटिफिक एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू बैकअप द क्लेम्स। जो हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें हम जो क्लेम कर रहे हैं कि इसमें बेनिफिट आया ही आया, तो मोर protocol based randomized controlled trials are required basically, where we can correlate the different इलाज विद तदबीर regimenal therapies with the menopause। तो जो है हमारे पास और बेटर हमको इसको समझने में आसानी होगी। So that was all from my side. If you have any query you can ask. किसी के हैं सवाल दिमाग में? Thank you so much. So final, thank you so much, and we will now conclude to the yoga session, for which we have got Mr. Dharmendra Kumar. Hello everyone, very good evening to all of you. Very good evening. थके थके हुए लग रहे होगे सभी। तो जस्ट चेंज, फर्स्ट थिंग आपको जो ध्यान रखनी है, फर्स्ट स्माइल फेस प्लीज एवरीबॉडी। हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएंगे और 30 सेकंड के प्लीज सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, प्लीज एवरीबॉडी, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो योग का मीन्स आपको पहली बात तो स्टार्टिंग से ही एक हैप्पीनेस मिलनी है। मैम ने बता दिया, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार, योग ट्रेनर हूँ, अखंड योग कार्यशाला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। कैसा लग रहा है? वेरी गुड। दस फर्स्ट चीज जो चेंज है वो यही कि अच्छा लग रहा है। अब दोनों आर्म सामने रख लो प्लीज एवरीबॉडी, आगे नहीं आएंगे। अब साइड में तो नहीं करना, आर्म्स को अप करना है। मैं कहूंगा कैसे आप सभी, आप करना बहुत अच्छे। कैसे आप सभी? अच्छे नहीं होगे तो हाथ मत उठाना। तो पहला चेंज तो यही है। देखिए जरा सी स्माइल बड़ा चेंज लाती है। मैम ने कहा ना आपको फास्ट से कहना है, स्लो होना है। अब मेन थिंग यही है। तो कैसे हैं आप सभी? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? वेरी गुड। बस हल्का सा एक बार आर्म्स अप कर ले, जस्ट स्ट्रेच अप। फर्स्ट आसन भी हमारा यही था, दैट इज ताड़ासना। आपको स्ट्रेच करना है, नहीं स्ट्रेच कर सकते ऐसे नेक को अप कर ले, बस शोल्डर्स को बैक कर ले। वेरी गुड। थोड़ा सा नेक मूवमेंट कर लेंगे तो कंफर्टेबली हम सिट भी कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। हल्का हल्का नेक को मूवमेंट कर ले, थोड़ा शोल्डर्स अप कर ले। बहुत बढ़िया। एंड सिट डाउन प्रॉपर्ली। कैसा लग रहा है? चेंज बस अब कहना वो माइक्रो सेकंड में चेंज होता है। ओनली 30 सेकंड टू 1 मिनट दिया होगा हमने, जस्ट चेंज। आप फील करेंगे, एनर्जेटिक आप चीजें समझ पाओगे। तो योग के विषय में बात कर रहे थे अभी हम। तो योग जैसा आप मैंने तो आपको अच्छे से समझा ही दिया है, तो उसमें वो फास्ट से स्लो पे जाना है। तो योग से अच्छा स्लो प्रोसेस आपको कोई नहीं दे सकता। और कोई चीज आपको समझनी है किसी भी विषय में, तो अभी जैसे बात की तो उसके सिम्टम्स आप देखो। तो सिम्टम्स क्या है इसके? आफ्टर फिजिकल सिम्टम्स है। क्या क्या सिम्टम्स है फिजिकल? बताएगा कोई एनीवन? अभी मैम ने बताया था। फिजिकल सिम्टम्स क्या है? हाँ वेरी गुड। और ब्रेन फॉग, वेरी गुड। तो मेंटली हो जाए थोड़ा सा। हाँ फिजिकल ओनली। हाँ वेरी गुड। जॉइंट्स पेन भी होंगे आपको, मसल्स पेन होंगे। और मिस्टीरियस, मैंने जितना पढ़ा अभी तक उसमें मिस्टीरियस मतलब कहीं भी पेन हो सकता है आपको बॉडी में। ये चेंजेस आपको कैसे दिखाई देंगे? फिजिकली। फिर मेंटली क्या होंगे? स्ट्रेस, एंजाइटी, कभी भी बैठे बैठे। और क्या होगा मेंटली? ब्रेन फॉग। और बात करो प्लीज, ऐसे ही निकलेंगी चीजें।
हाँ, मूड स्विंग कभी भी हो सकता है। फिर थर्ड वन इज जब ये दो चीजें बिगड़ी आपकी, मेंटल एंड फिजिकल, तो सोशली क्या होगा आपका, ऑटोमेटिक आपके रिलेशंस बिगड़ने लगेंगे। वो किसी के साथ भी हो सकता है, ये चेंजेस आपको फील होंगी। फोर्थ वन इज स्पिरिचुअलिटी। चारों डायमेंशन है ना आपके, जब तीनों चीज एस्पेक्ट आपके बिगड़े तो स्पिरिचुअलिटी ऑटोमेटिक आपकी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो चारों एस्पेक्ट आपके क्या हो गए, डिस्टर्ब। WHO ने डेफिनेशन क्या दिया हेल्थ की, फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली क्या होना चाहिए आप, वेल बीइंग। वही ना, वो बात की बात है कि डिफॉर्मिटी होना, वो ये चारों आपके वेलनेस होने चाहिए। अब हमारे योग में बड़ी खूबसूरत अष्टांग योग 8 पार्ट्स हैं। अभी WHO ने तो डेफिनेशन 1978 में दी, वो 2500 ईयर्स पहले, 2500 ईयर्स पहले अष्टांग योग दिए। अष्टांग योग के 8 नियम है। फर्स्ट 2 यम एंड नियम, यम एंड नियम, वो किसको कंक्लूड करते हैं, यम और नियम, वो आपके सोशल रिप्रेजेंटेटिव आपके कौन से हैं, यम और नियम। थर्ड वन इज प्राणायाम, फोर्थ वन इज थर्ड वन इज आसना, फोर्थ वन इज प्राणायाम। आसना और प्राणायाम आपके फिजिकल लेवल को, देन प्रत्याहार एंड धारणा, वो आपके किसको रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, मेंटल एस्पेक्ट को। देन लास्ट वन ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान और समाधि कौन से एस्पेक्ट को पूरा करते हैं, आपके स्पिरिचुअलिटी को। 2500 साल पहले बता दिया उन्होंने। वो 8 अलाइनमेंट अभी WHO ने अभी ज्वाइन किया 1978 में। हमारे जो ऋषि हैं पतंजलि, उन्होंने 2500 साल पहले ये चीज क्या कर दी, डिफाइन कर दी। अब उठ अलाइनमेंट से हमको काम करना है 2 पर, आसना एंड प्राणायाम। उसमें हमारी मुद्राएं, क्रियाएं हैं। तो योग इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अब हमारी जो थीम है आज की, मंथ्स टू मिनट्स, मतलब मंथ्स पे ध्यान नहीं देना आपको, मिनट्स पे, जस्ट स्लो डाउन योर प्रोसेस, ठीक है। सेकंड वन इज आउटर साइड से आपको क्या आना है, इनर साइड पे। अब एक चीज में बैठा बैठा सर भी कहते हैं गैस करते रहो कि आसपास क्या हो रहा है, कान खुले रखो, आंखों से देखो। तो अभी बात कर रहे थे कि खाना खा गए हैं, वो बता दियो आपको योग का लेक्चर आपका होना है, तो वो कहने हैं कि खाना खाने के बाद योग कैसे करेंगे। ये मिथ है आपका, ये भी मिथ है, मिसकंसेप्शन ये योग के हैं कि आपको ड्रेस, प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर मैट होना चाहिए, सब मिथ है। इस मिथ को दूर ही तो करना है। आप बैठे बैठे भी योग कर सकते हो। अभी मैंने आपको जो स्ट्रेच किया, स्ट्रेच जरूरी नहीं है कि आप हम सब करो, नेक अप कर लो, ये भी तो योग ही है। 84 लाख आसन है, वो डिफाइन भी नहीं कर सकते आप। एवरीथिंग, इसमें एक आसन की बड़ी परिभाषा है, स्थिरता होनी चाहिए, स्थिर सुखम आसन, जिसमें स्थिरता हो, सुख की अनुभूति हो, वही आसन है। मतलब आप अभी कंफर्ट बैठे हो, कोई परेशानी आपको नहीं है, सुख की अनुभूति हो रही हो, हर एक आसन है जिसमें स्थिरता, सुख की अनुभूति, वही आसन है। हाँ, यही तो मैम, यही तो मैं कहता हूँ, मिसकंसेप्ट नहीं है। अभी देखिए आप खाना खाने के बाद वज्रासन, अभी मैं आपको वज्रासन करके दिखाना, बैठ गए। खाना खाने के बाद सबसे ज्यादा जो फायदा वो इस आसन का है। अभी ज्यादा खाने में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी दिखाता हूं। अब क्या हुआ, जस्ट लेग्स इन्होंने क्या कर लिया, फोल्ड कर लिए, हिप्स बैठ गए, इधर साइड से दिखाना व्यू, तो जस्ट मिला ली इन्होंने, हिप्स अप साइड। अब तो पैर में क्या हो गया, लॉकिंग लग गई, तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, इस एरिया में कम हो जाएगा। यहां से कनेक्ट कटेगा ना, बहुत कम जाएगा, मतलब जाएगा, इतना नहीं जाएगा। तो अब ब्लड का फ्लो ज्यादा कहां होगा, मैक्सिमम, गैस करो, इसी एरिया में होगा, इसी एरिया में होगा ना। तो डाइजेशन क्या होगा, ऑटोमेटिक इंप्रूव करेगा, मतलब आपका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब ब्लड का फ्लो मेन जरूरी है, तो ब्लड का फ्लो जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, डाइजेशन आपका बहुत फास्ट होगा। जो चीज आपको 2 घंटे में डाइजेस्ट होनी थी, वो इससे क्या हो जाएगी 30 मिनट्स बिफोर। तो खाना खाने के बाद सबसे सर्वोत्तम आसन है। ये नहीं कर सकते सिंपली, मुद्रा जो होती है योग में, ये आर्म से आपका राइट और लेफ्ट दोनों, इसकी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को क्लोज कर लो आप, और जो इसकी फर्स्ट टिप है, इसके थंब के जॉइंट्स को, सॉरी टिप को इस जॉइंट पे लगा लो। फर्स्ट जॉइंट जो है, इसको बोलते हैं सूर्य मुद्रा। हमारे योग में कौन सी हो गई, सूर्य मुद्रा। अब सन का काम क्या है, एनर्जी देने का।
हीट को क्या करना, बढ़ाना। तो ये गर्मी बढ़ाएगी आपके शरीर के अंदर। जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, डाइजेशन फास्ट होगा। लेकिन कब किसको नहीं करना वो भी देखना है कि अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो अब नहीं करना। कोल्ड सेट जितनी भी चीजें हैं उसमें बड़ा फायदेमंद है। और एक चीज और मैं आपको फैक्ट बताऊं, आपकी जो डाइट अभी रेगुलर जो चल रही है, इसको अगर आप 1 मंथ यही कंटिन्यू रहे, जो डाइट्स आपकी अभी है और जो वर्कआउट अभी है, 1 महीना आप इसको कर लो तो 2 kg वेट आपके ये लूज कर देगी, ओनली खाली बैठे बैठे। सूर्य मुद्रा 10 मिनट 10 मिनट। हाँ हाँ मैम, रिसर्च है, मैं आपको भेज भी दूंगा। 2 मंथ्स, वो सॉरी 1 मंथ जो सेम है आपकी, खाली इस मुद्रा को लेने से, डाइट लेकिन सेम। अब डाइट बढ़ा लो वो मैं कह नहीं सकता, दोनों हाथ से मैम। लेकिन कब किसको नहीं करनी, अब इनके इधर टेम्परेचर होगा तो क्या नहीं करना, हाई बीपी में नहीं करनी आपको, हाई बीपी वालों को नहीं करनी, जिनको एंजाइटी उनको नहीं करनी। ये 2-3 चीजों में नहीं ध्यान रखना है। सभी को है हाई बीपी, सभी को है। इसका भी सुनिए, ये 5 थिंग्स है आपकी बॉडी, 5 एलिमेंट्स से बनी है, सब जानते हैं। पहला कौन सा है, थंब। थंब इंडिकेट करता है किसको, सन को। किसको इंडिकेट करता है, सन को। सेकंड वन इज वायु, एयर। थर्ड वन इज स्पेस, मतलब आकाश, उसका कोई लिमिट नहीं है। फोर्थ वन इज पृथ्वी, अर्थ। एंड लास्ट वन इज वाटर। अब इसको सिंपली आप अगर सीखना चाहते हैं, आर्म से आपका सबसे बड़ी फिंगर कौन सी है आपकी, मिडिल फिंगर है, तो सबसे बड़ा क्या है आप ब्रह्मांड में देखोगे, स्पेस, तो आपको आर्म्स में भी दिखाई दे रहा है। अब स्पेस के अंदर क्या है आपकी, अर्थ। तो जस्ट इसी के जो पास में है ये आपकी रिंग फिंगर, ये डिनोट्स करती है पृथ्वी को, अर्थ को। उसी के पृथ्वी के अंदर क्या है अब, जल। तो जल पृथ्वी के अंदर है, तो इसी के नीचे जो बची वो कौन सी आपकी, वाटर को इंडिकेट करेगी। अब बचा कौन सा आपका, थंब। थंब तो एनर्जी यही, सन। तो एक लास्ट बची आपकी एयर। तो 5 एलिमेंट्स 5 फिंगर्स में आपकी। कुछ नहीं करो तो बाकी मुद्रा ले लो। आप किसी को वात की समस्या है, वो होती है ब्लोटिंग, उसका एक सिम्टम ये भी था, डाइजेशन आपका क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए उसका सिंपल एक मुद्रा है आपकी वायु मुद्रा, वात को बैलेंस करने के लिए। जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इसको जो थंब है आपका, इसके लास्ट टिप से लगा दो, ऐसे बंद कर दो सिंपली, तो वात का बैलेंस होगा। और वात अगर बैलेंस हो गई तो 80% डिजीज आपकी इससे रिसॉल्व हो जाएंगी। 10 मिनट्स। अच्छा मुद्रा का मैम एक चीज ध्यान रखना है सबको कि 10 मिनट से लेकर कितनी देर करना है, 15 मिनट्स, तभी बेनिफिट्स होंगे। बस ये। अरे एक चीज और चीज ध्यान रखनी है, आपको पाम की दिशा हमेशा अपवर्ड रखनी है, डाउन नहीं रखनी। क्या करनी है, अपवर्ड, डाउन नहीं करना। आवाज आ रही है पीछे तक मेरी, बहुत बढ़िया। बीच में चेंज करते हैं। कैसे हैं आप सभी, सीख रहे हैं ना, वेरी गुड। अभी काम कर रहे हैं फिजिकल, लेकिन वो मेंटल पे भी काम करेगा आपकी। अब आसन से थोड़ा सा बात करेंगे फिजिकल के लिए। तो फर्स्ट आसन हमने कौन सा किया था, ताड़ासना, जो आपको स्ट्रेंथनिंग देगा आपकी लेग्स में, अगर पेन्स है खासकर आपके आर्म्स में। जब आप आर्म्स अप करेंगे तो शोल्डर्स पे क्या आएगा, अच्छा स्ट्रेच आएगा। अब मेन जो योग का कॉन्सेप्ट है, किसी भी थेरेपी का कॉन्सेप्ट है, वो ब्लड का फ्लो आपकी एक सेल्स तक करना, ना कोई भी पार्ट उससे दूर ना रहे। बड़ा बेसिक है, यही फंडा है हर चीज का, एक्सरसाइज का और योग का। तो फिजिकली मूवमेंट्स, इसको ताड़ासना करो। जो फर्स्ट हमने दिखाया है वो आपका ताड़ासना, ये फिजिकल एस्पेक्ट पे काम करेंगे आपके, किसी भी टाइम नहीं। ये तो स्पेसिफिक आप जैसे अभी बैठे हैं स्टैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन आर्म्स अप करेंगे तो क्या होगा, फ्लो थोड़ा सा अप होगा। तो खाना खाने के बाद ना करें, कुछ मैं बताता रहूंगा आपको बीच बीच में। देन सेकंड वन इज, हाँ जी, नेक्स्ट आसन इज वृक्षासना। ये बैलेंसिंग के लिए बड़ा जरूरी है आपकी, बैलेंस। और देखिए आफ्टर 40 आपको बैलेंसिंग एक्सरसाइज, ये रिसर्चेज कहती हैं कि बहुत जरूरी है। और इससे अच्छा बैलेंस आपको कोई नहीं दे सकता। देखिए 3 फेजेस में, ये तो एडवांस फेस है। फर्स्ट फेज आपको टोच को टच करो विशाखा, हाँ ये फर्स्ट फेज है। स्टार्टिंग आपको इससे करनी है, दोनों आर्म्स अप ले जाने हैं। और इस आसन में आपको ध्यान रखना है कि आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खुली रखनी है। ध्यान आपका अपनी ब्रीदिंग पर रखना है।
देन सेकंड स्टेज इज नीज पे रखना है, थर्ड वन इज थाइज, एडवांस। धीरे धीरे जब आप ग्रेड करते रहे तो ये। नेक्स्ट वन इज वॉरियर पोज। वॉरियर पोज भी ऑटोमेटिक आपके लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए बड़ा अच्छा है। एक बार देख लेंगे, दोनों पैरों में आपको गैप लेना है, राइट की टोज राइट साइड। ये आपके स्टैंडिंग पोज हैं। स्टैंडिंग पोज जितनी भी है वो आपके मेन आपके लेग्स के लिए काम करेंगी। सामने देखना है बिल्कुल, आर्म्स अप टू शोल्डर लेवल। इसके भी वेरिएशन है, जरूरी नहीं है कि आप स्टैंडिंग में पैर ज्यादा फोल्ड करें जिसमें आप कंफर्टेबली रुक जाएं। नेक्स्ट वन इज आपका वज्रासन। ये बड़ा अच्छा आसन है, बस किसको नहीं करना, जिनको नीज में बहुत पेन हो। तो अर्थराइटिस वाले थोड़ा अवॉइड करेंगे, बाकी सब इसका करते हैं। अगर खाना खाने के बाद प्लीज हर कोई इस आसन को जरूर करो। डाइजेशन की समस्या आपकी सही हो गई तो किसी ने एक वो शब्द है ना, पेट, वो सुना है आपने, पेट सफा हर रोग दफा। तो पेट साफ तो सारी बीमारियां, तो जड़ वो क्या है, तो पेट ही आपका। तो पेट सफा हर रोग दफा। मैं 10 to 15 मिनट्स, स्टार्टिंग में 2 मिनट्स करना है आपको, वो बता दे कैसे उसका फायदा, वो तो अब देख लेंगे। 10 to 15 मिनट्स। देखिए कोई भी अगर डिजीज में आप स्पेसिफिक करोगे आसना तो कम से कम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक, लेकिन स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं करना, 10 सेकंड 20 सेकंड या 30 सेकंड, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करके इसको 3 मंथ्स। देखिए 90 दिन तो करना पड़ेगा। किसी चीज का भी इफेक्ट आपको देखना हो तो 90 डेज से लेकर कितना 180 डेज, फर्क आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा 21 डेज। आफ्टर 21 डेज कुछ चीजें तो अभी आपको दिखने लगेंगी। नेक्स्ट वन इज कैट एंड काउ। ये भी बड़ा फायदेमंद है आपके लिए। बस किसको अवॉइड करना है, जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो उनको अवॉइड करना है, खासकर आपके बैली को स्मूथ बनाता है ये। नेक्स्ट वन इज देन थोड़ा स्ट्रेंथनिंग के लिए, बोन्स की पावर भी आपको बढ़ानी है ना, तो स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए इसमें हिप्स आप रखने हैं आपको और फेस डाउन। तो ब्लड का मैक्सिमम फ्लो अब आपका किधर की तरफ होगा, फेस की तरफ होगा। तो आपके ब्रेन कामनेस के लिए भी बड़ा अच्छा है। स्ट्रेंथनिंग आपकी आर्म्स की बनेगी। नेक्स्ट वन इज भुजंगासना। अब देखिए जिसको बैक पेन की समस्या भी इसके सिम्टम्स में आती है ना, तो बैक पेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और मेन भुजंगासन आपका यही है, नेवल पॉइंट तक आपको उठना है और चिन को जितना आप ले जा सकते हैं, ये स्ट्रेंथनिंग बैक को देगा आपको। जितने भी पेन से आपको स्ट्रॉन्ग करना है उसकी मसल्स को। देन नेक्स्ट सलभासना। सलभासन आपके मेन आपकी जो चेस्ट की मसल्स है उनको इंप्रूव करने के लिए, खासकर हार्ट की स्ट्रेंथन बढ़ाने के लिए, और बैक पे भी फायदा देता है। चिन को अप करना है, बस किन को नहीं करना, जिनको सीवियर बहुत ज्यादा बैक पेन हो तो अवॉइड कर देंगे इसको, और हर्निया पेशेंट जिनको हर्निया की प्रॉब्लम हो उनको अवॉइड करना है। बाकी सभी इसका 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट्स तक। नेक्स्ट वन इज अर्धहलासन। देखिए ये आसन बड़ा अच्छा है, आपको मेन जो फ्लो है वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो आपके हैं उन पर पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि अब लेग्स अप हो गए। मेन जो देखिए ग्रेविटी, जो हम खड़े होते हैं स्टैंडिंग में, ग्रेविटी क्या करती है, ब्लड को क्या करती है, फ्लो नीचे की तरफ, आपकी तरफ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो ब्लड का फ्लो आपके पैरों की तरफ होता है। अब आपने पैर कर लिया, अब जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप जाएंगे बैक पेन के लिए जाएं या जितने भी आपके डिसऑर्डर हैं पेट से रिलेटेड, तो वो इस आसन को प्रेफर करते हैं, अर्धहलासन। स्टार्टिंग में आप इसको सपोर्ट वॉल से भी कर सकते हैं, हिप को वॉल के पास लगा लें, लेग्स अप कर लें, तो मेन ब्लड का फ्लो आपका किधर की तरफ होगा, बैली रीजन की तरफ। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं आपके किडनी के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके लीवर के लिए, जिनको फैटी लीवर है वो इस आसन का अभ्यास करें। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है आपके। नेक्स्ट इज भद्रासना, सेतु बंधासना। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड बड़ी आम हो गया है, देखिए एक सिंगल आसन आप कर लें, कितने दिन, कम से कम 3 महीना। और ये रिसर्चेज कहती हैं कि उनका ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन 90% रिजोल्व आपका इससे हो जाएगा थायराइड के लिए। और मेन आपकी बैक की स्ट्रेंथन और नीच की स्ट्रेंथन भी है। अभी जो एंगल है इसका वो 90 डिग्री एंगल है। अगर आपको लेग्स को स्ट्रेंथन देनी हो, डाउन आना, डाउन आना, हाँ। अब हिप्स डाउन, हिप्स फ्लोर से टच, हील्स को थोड़ा दूर ले जाओ और थोड़ा दूर ले जाओ। अब हिप्स आप रेस करेंगे आप, तो आपके क्वाड्स को स्ट्रेच करेगा, जो क्वाड्रिसेप्स है आपकी थाइज मसल्स अपर,
उनके स्ट्रेंथन के लिए। तो बैक से आपको पैरों पे भी शिफ्ट करना है। एक आसन कई चीजों में फायदा करता है। फिर डाउन आओ, थोड़ा और दूर ले जाओ। हाँ, उतने प्रेशर आपकी नीज के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन नीज की आपको हेल्थ अगर अच्छी करनी है तो नीज के अराउंड जो जितनी मसल्स हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लो। तो नीज में पेन का कारण क्या है? आपकी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग, और साथ में आपकी ये जो काफ मसल्स हैं गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस, ये क्या होते हैं कि कमजोर हो जाती हैं, सपोर्ट नहीं दे पाती उसको। तो जितना आप इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर लोगे उतना नीज पेन आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट मिल रही है ना आपको अदर मसल्स की। तो ये वर्कआउट आपको खाली बैक पे नहीं देगा, आपके थायराइड के लिए तो यही गलत, क्योंकि ब्लड का फ्लो हार्ट ऊपर हो गया तो ब्लड का फ्लो मैक्सिमम आपके इसी पे आएगा, थायराइड ग्लैंड। एंड देन एंगल चेंज करेंगे तो थाइस पे भी आएगा। नेक्स्ट वन इज भद्रासना। देखिए हार्मोनिकल इम्बैलेंस में अगर ये आसन आप 1 मिनट करते हैं तो हार्मोनिकल इम्बैलेंस आपका बहुत हद तक सही हो जाएगा, ये रिसर्चेस कहती हैं। कुछ मत करें, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट डेली प्रैक्टिस में ले आए वीरभद्रासन, सॉरी इसको बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। तो सभी इसका अभ्यास 1 मिनट कंफर्टेबली। अगर नहीं कर सकते तो सिंपल तरीका इसका मैं बताऊं आपको, आप जब लेटने जाएं तो थोड़ी देर के लिए आप हील से हील, टो से टो ज्वाइन कर लें और नीचे करते बाहर की तरफ, यानी लेइंग डाउन इन शवासन। इसमें लेटना है कमर के बल, सीधे लेटना एक बार। करना कितनी देर है? 2 मिनट से लेकर 5 मिनट, सिंपल सा अभ्यास है। हाँ, नीज को बाहर की तरफ ले आओ, बटरफ्लाई में लेटना है, हील से हील, टो से टो, थोड़ा दूर रखो, सिंपल, बस इस आसन में लेट जाओ आप। ये कभी भी कर सकते हो आप, कोई पेट पर लोड नहीं आ रहा, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। और मेन जो, और इसका इफेक्ट आपको क्या होगा? हार्मोन्स में बड़ा इफेक्ट देगा आपको, हार्मोन्स बैलेंस में। नेक्स्ट वन इज प्राणायाम। अब प्राणायाम की तरफ आएंगे। फर्स्ट हमारा जो प्राणायाम है ये मेंटल लेवल का बड़ा अच्छा है आपका, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब सभी बैठे हैं, नॉर्मली दोनों आर्म्स अपने रखिए, लेफ्ट आर्म जो आपकी है उससे ज्ञान मुद्रा लेंगे। ज्ञान मुद्रा आपको मेंटल पीस के लिए बड़ा अच्छा है। नेक्स्ट इससे लेंगे विष्णु मुद्रा। स्टार्टिंग की जो 2 फिंगर को क्लोज कर लो राइट वाले आर्म से, और राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीद इन करिए। प्लीज सीख लीजिए। अभी आप इसके चमत्कार जो सुनेंगे ना, जादू सुनेंगे, तो बड़ा अचंभा लगेगा आपको। आप सुनिए, आपको अच्छा कितनों को पता है कि हमारी जो हाफ बॉडी डिवाइड है वो राइट साइड या लेफ्ट साइड, कोई सा भी, हाफ बॉडी आपकी ठंडी करती है बॉडी को, और लेफ्ट आपका, सॉरी आधी बॉडी आपको गर्म करती है। जानते हैं कोई? नहीं जानते ना? इसको बोलते हैं नाड़ी। हमारे यहाँ 3 नाड़ी हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, इसको बैलेंस करती है सुषुम्ना नाड़ी। तो लेफ्ट साइड आपकी चंद्र नाड़ी है जो बॉडी ठंडा करती है आपकी, जिस तरह आपका हार्ट भी है। राइट साइड आपकी बॉडी क्या करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी। इसलिए जो भी काम हम करते हैं वो राइट साइड से करते हैं, इसलिए सिद्धार्थ एक्टिविटी भी होता है, इसका कारण भी यही है। और सुषुम्ना इसको क्या करती है? बैलेंस। और अनुलोम विलोम से कोई इससे अच्छा कोई चीज है ही नहीं, वो उसको दोनों को बैलेंस करती है। कब बॉडी को गर्म करना है, कब बॉडी को ठंडा करना है। अभी खाना खाने के बाद आए आप सभी, आप तो बॉडी को क्या करना है? आराम करना है, ठीक है। अभी कोल्ड हो जाए बहुत ज्यादा तो बॉडी को गर्म कौन सा पार्ट करेगा आपका? राइट साइड। नोस्ट्रिल भी एक ही चलती है, अभी देखेंगे आप, एक नोस्ट्रिल आपकी एक्टिवेट होगी, दोनों नोस्ट्रिल नहीं चलेंगे आपकी, एक नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट होगी। किससे हो रही है? फील करें, जिसकी राइट से बाहर आ रही है सांस उसका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है। लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव होने का मतलब क्या है? बॉडी ठंडी होगी, मतलब कोल्ड प्रोसेस पे जा रही है। अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट हो रही है तो राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है, और राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है, कुछ भी खाना खा लो आप, वो डाइजेस्ट होने ही होना है। हाँ, अब मैम ने जो बात की थी, आपको जाना किस पे है? स्लो प्रोसेस पे। तो स्लो प्रोसेस के लिए आपको कौन सी चीज जरूरी है? आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल जितना एक्टिवेट होगा वो आपको क्या करेगा? कूलिंग डाउन, कूलिंग डाउन। और इसका आप अभ्यास करेंगे, मैं सच कह रहा हूं आपको, अगर आप 2 मिनट लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करें इन और राइट नोस्ट्रिल से करें ब्रीथ आउट, इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी प्राणायाम, चंद्रवेदी। लेफ्ट मतलब ये बायां, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लें और राइट नोस्ट्रिल से क्या करें? श्वास छोड़ें। तो 2 मिनट से स्टार्ट करके देखिए, 2 मिनट स्टार्ट करके देखिए। अगर आपके पास टेम्परेचर नापने का तरीका हो ना, ऐसे कहते हैं बीपी कम करने का, सच में कह रहा हूं,
बीपी 10 to 15 कम हो जाता है। और जिनका बीपी बड़ा हाई है, अभी कह रहे थे बीपी बड़ा हाई है, बीपी शूट आउट भी करता है इसमें। बीपी को डाउन करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम कौन सा है आपका? चंद्रवेदी प्राणायाम। उल्टा मत कर लीजिएगा, नहीं तो बीपी शूट आउट भी कर देगा। वो कम करने के लिए भी, ज्यादा करने के लिए भी है, बढ़ा मत देना। ये आपको रेगुलेशन, आपको सीखना क्या है, आपको पर्पज क्या है आपका, वो चीज। हाँ, हेल्दी रहना। तो अनुलोम विलोम इसलिए बेस्ट। अनुलोम विलोम कहते हैं बैलेंस करता है, कब बॉडी को ठंडा करना है, वो सुषुम्ना नाड़ी जितनी एक्टिव होगी, तो वो जब आपकी बॉडी को ठंडा करना होगा तो क्या करेगी? राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट कर देगी, वो सॉरी लेफ्ट। और जब गर्म करना हो तो क्या कर देगी? राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट कर देगी। वो ऑटोमेटिक चेंजेस करती है। तो इसलिए सबसे अच्छा प्राणायाम कौन सा है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीद इन करें, राइट नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट, देन राइट नोस्ट्रिल से ब्रीद इन करें और लेफ्ट नोस्ट्रिल अल्टरनेट चलाना है आपको। फिर नेक्स्ट वन इज कपालभाति प्राणायाम। नाम इसका कपाल, मतलब आपके ब्रेन की साइनिंग के लिए, इसको ब्रेन साइनिंग भी बोलते हैं। जी मैम, अनुलोम विलोम मुद्रा, विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा, लेफ्ट आर्म से आपने ज्ञान मुद्रा ली, राइट आर्म से आपने क्या लेना है? राइट आर्म से परफॉर्म करना है ना, विष्णु मुद्रा। तो राइट नोस्ट्रिल से आपको थंब बंद किया, लेफ्ट से सांस लिया, रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करो, राइट को हटा दो और राइट नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट, देन इनहेल बाय राइट नोस्ट्रिल, थंब बंद करो, राइट नोस्ट्रिल, देन लेफ्ट से ब्रीद आउट कर दो। 2 मिनट से लेकर 5 मिनट। मिनिमम स्ट्रोक इसमें 20 मतलब लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ा, राइट से लेकर लेफ्ट से, तो एक कंप्लीट हो गया। ऐसे कितने स्ट्रोक्स करने हैं आपको? 20 स्ट्रोक्स। देन नेक्स्ट वन इज शीतली प्राणायाम। शीतली ऑल्सो भी, ओ सॉरी कपालभाति प्राणायाम। अच्छा, मुद्रा कोई सी भी ले लीजिए आप कंफर्टेबली, मेन आप ज्ञान मुद्रा ले तो बेस्ट है, या जल मुद्रा। ये भी आपको क्या करेगी? कूलिंग डाउन में रखेगी, काम करेगी। तो कामनेस की तरफ हमको जाना ही है, ऑटोमेटिक। अच्छा, कुछ ना करो, ब्रीदिंग पे ध्यान कर लो। देखिए एक चीज देखिए, नर्वस सिस्टम आप सब जानते हैं, उसके 2 पार्ट्स है, सीएनएस एंड पीएनएस। पीएनएस का एक पार्ट है ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक के भी 2 पार्ट्स हैं। आप सुनिए प्लीज, बात आ गई तो। उसका जो पार्ट्स है उसमें 2, एक पैरासिम्पैथेटिक, एक सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या काम करता है? फाइट एंड फ्लाइट। ये मोड आपका जैसे ही मेनोपॉज में आएंगे आप, उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। सारी एक्टिविटी आपकी कौन सी होने लगेंगी? सिंपैथेटिक वाली, फाइट एंड फ्लाइट। जल्दी लड़ पड़ेंगे, मूड स्विंग होगा। ये किसके पार्ट्स हैं? हार्ट इंक्रीज होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सारे पार्ट्स किसके हैं? सिंपैथेटिक। अब आपको जाना किस तरफ है? पैरासिम्पैथेटिक। कौन सा? रेस्ट एंड डाइजेशन। रेस्ट एंड डाइजेशन को कौन बैलेंस करता है? पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्सरसाइज कौन सी है? सारी प्राणायाम, ब्रीदिंग। तो उसमें एक लेडी जो मेनोपॉज के बाद उसने जो योग थेरेपी बताई थी, उसमें मैं पढ़ रहा था परसों, उसने बताया कि सिर्फ कुछ मत करो। फर्स्ट आपने अगर अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर लिया तो कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा आपका? पैरासिम्पैथेटिक। ओनली बस ब्रीदिंग क्या हो जाएगा? कामनेस आने लगेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पर ध्यान लगाने से ही। हाँ, अब मैंने पूछा आपसे कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। क्या कब होंगे? गुस्से में थोड़ी होंगे, गुस्से में थोड़ी होंगे। तो ये कौन सा पेस आपका एक्टिवेट हो रहा है? पैरासिम्पैथेटिक। तो स्लो प्रोसेस आपका कैसे आएगा? जब आप पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज करने लगेंगे। तो ब्रेन के किस पार्ट पे काम करना है आपको? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज। तो जितने भी आसन है वो आपको स्लो प्रोसेस में करने हैं। अब मेन सारी चीजों का निचोड़ यही है कि मंथ्स टू मिनट और मिनट्स टू सेकंड, सेकंडों पे ध्यान देना है। अब कैसे एक्टिवेट होगा? कोई चीज आई आपके पास, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ जाए, उसको क्या है, बिना अगर आपने सोचे समझे रिएक्ट कर दिया तो कौन सा पार्ट आपने एक्टिव कर लिया? सिंपैथेटिक। फाइट एंड फ्लाइट, सोचा है नहीं। लेकिन अगर जरा सा भी आपने सोच लिया, थिंक, ओनली थिंक, और उस पार्ट में थोड़ा सा गहन आपने, इसलिए तो कहते हैं सोच समझ के निर्णय लो, तो वो पार्ट्स आपको खुद इंक्रीज करना है। तो स्लो पार्ट पे जाना है, ज्यादा चीजें तो नहीं वो बता पाएंगे। शीतली, शीतली भी आपको किस पे जाएगी? कामनेस। जीभ को बाहर निकालना है, हल्का फोल्ड करना है और जीभ के रास्ते आपको श्वास लेनी है। अभी करके देखिए प्लीज, जिनको गर्मी लग रही है ना, सच में अभी ठंडक लगेगी, फील करेंगे आप। बड़ा जादुई अभ्यास है। जीभ को बाहर निकाले, हल्का फोल्ड करें
और श्वास को ले और फिर नोज से श्वास छोड़ दें। वंस अगेन, थोड़ी देर रोकें, ब्रीद आउट स्लोली, प्लीज बात है नहीं। वंस अगेन एंड ब्रीद आउट। नेक्स्ट इसी में ही शीतकारी, टीथ के द्वारा ऐसे, अब दांतों के रास्ते सांस लेनी है आपको, जीभ पे ठंडक लगनी चाहिए। आ रही है टंग पे ठंडक? वेरी गुड, देन ब्रीद आउट। कामनेस ऑटोमेटिक आने लगेगी, कामनेस ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेन चीज है कामनेस। ये सारी चीजें आपके कवर हो जाएंगी, मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको मिलने लगेगा। हाँ, लगा ना आपको? सच में करेंगे नहीं तो फील क्या होगा, करके देखिए। अच्छा ये भी देखो, आप वो खाना खाने के बाद नहीं करते, ये तो कर सकते हैं, बड़ा आसान है। अच्छा सीट पे बैठ के कर सकते हैं, कुछ नहीं सोने से पहले कर सकते हैं। वो सारे मिसकंसेप्शन हटा दीजिए, बस आपको क्या चीज करनी है, कब नहीं करनी, ये चीज ध्यान में रखनी है। हर एक्टिविटी बैठ के भी कर सकते हैं। मुद्रा तो कोई आपको अलग से मैट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, मैं तो खड़ा खड़ा ही बता रहा हूं आपको। कोई मैट कौन सा मैम? फिर वही मैंने बताया आपको, जब आपका लो बीपी हो, लो बीपी में उल्टा हो जाएगा ना, बॉडी आप उल्टा में ठंडी कर रहे हैं तो लो बीपी में और नुकसान हो जाएगा आपको, बॉडी टेम्परेचर सेटिंग डाउन हो जाएगा। तो जो भी ठंडे वाले आपको उसमें लो बीपी में नहीं करने। या अब देखो उल्टा इसका रिवर्स, हाई बीपी में बड़ा फायदा देंगे आपको, या गुस्सा आ रहा हो, एंजाइटी हो रही हो, तब आपको बड़ा फायदा करेंगे कामनेस के लिए। मेन हमारा जो योग का कॉन्सेप्ट था वो आपके कामनेस के लिए था। एंजाइटी पर 100% काम करेगा, डिप्रेशन में ऑटोमेटिक काम करेगा। डिप्रेशन क्या करता है, इंक्रीज तो करेगा आपकी हार्ट बीट को, ये क्या करेगा, स्लो करेगा। अच्छा सिंपल स्ट्रेस को दूर करने के तरीके हैं आपके, इसी में दोनों शीतली एंड शीतकारी एंड चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम प्लीज सीख लीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन करनी है और राइट नोस्ट्रिल से क्या करना है, ब्रीथ आउट करना है आपको। जितना आपका लेफ्ट साइड ये बॉडी को क्या करता है, ठंडा करता है। किसको नहीं करना, लो बीपी में नहीं करना प्लीज इसका अभ्यास, और सर्दियों में नहीं करना, सर्दियों में इसका अभ्यास नहीं करना। गर्मी में बहुत अच्छा है, जब आपको प्यास लगी और पानी ना हो तब इसका अभ्यास कर लो। खासकर शीतली एंड शीतकारी तो 1-2 घंटा आप आराम से निकाल लोगे, तब इसका अभ्यास करना है। नेक्स्ट आपका है शीतकारी, ये हो गया। चंद्रवेदी मैंने आपको बता ही दिया। देन भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी आपके न्यूरॉन्स के लिए बड़ा अच्छा है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। सिंपली जो ये नहीं कर सकते, बस कान को बंद कर लो आप और देखिए प्लीज 7 स्ट्रोक्स करेंगे अभी, आप सभी करें। और चैंटिंग देखिए बहुत स्मूथली, ये चैंटिंग करनी है, कान बंद करें, बड़ी कामनेस फील होगी। और न्यूरॉन्स डेवलप होती है, न्यूरोजेनेसिस, न्यूरॉन्स आपकी डेवलप होंगी। करिए धीरे धीरे। नर्वस सिस्टम की जो सेल है न्यूरॉन्स, जितनी अगर ये काम आपकी होंगी, करें करें सभी, बड़ा अच्छा लगेगा। आंखें बंद करिए, जरूरी नहीं कान बंद करो, बाहर की वॉइस को कट कर दो, खुद से करें। इंसोमेनिया में बड़ा फायदेमंद है आपके। इनको नींद आने की समस्या है ना, सोने से पहले कम से कम 10 बार इसका अभ्यास कर लें। अब मंथ से मिनट्स की हो गया, मिनट से सेकंड हो गया, अब सेकंड आउटर साइड से इनर साइड। अच्छा देखिए सबसे बातें करेंगे, दूसरे से बातें कर लेंगे, दूसरे की बातें भी देख रहा था मैं, आपस में पता नहीं क्या क्या बातें चल रही थी, दुनिया जहां की, मेरे पीछे पीछे बैठे दुनिया जहां की बातें चल रही थी। ये हो गया खाना खाने के बाद, ये हो गया, अब योग कौन करेगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या। अपने बारे में किसी ने बात नहीं की, खुद की सेहत का तो ध्यान रखना है। तो ये कि योग फॉर सेल्फ। अभी 5 मिनट देखिए एक्टिविटी करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। कैसे हैं आप सभी, प्लीज ये कहते रहिए। देखिए मात्र सोचने से एक हैप्पी हार्मोन है, कौन सा, डोपामाइन। डोपामाइन ऑटोमेटिक रिलीज होता है। अभी कोई आ जाए तो गुस्सा आ जाएगा आपको, तो कौन सा हार्मोन रिलीज हो गया, गुस्से वाला। लेकिन उसमें भी अगर आप काम रखेंगे तो डोपामाइन ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। तो बार बार कहते हैं खुद से, बहुत बढ़िया, हर चीज कामनेस, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगी, धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस। एवरीबॉडी प्लीज अभी बैठेंगे, एक 5 मिनट की एक्टिविटी है, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। क्लैपिंग करेंगे सभी पहले, धीरे धीरे, एक रिदम, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए एक्यूप्रेशर के अंदर सारे पॉइंट्स आपके हाथों में हैं, तो सारे एक्टिव हो गए, डबल फायदा। एक ब्लड का फ्लो आपका आप होने लगेगा, मात्र क्लैपिंग करने से। अब आपकी तरफ लाएं,
अब क्लैप करने से ब्लड का फ्लो कहाँ होगा? फेस की तरफ। वेरी गुड। अब आप 1 घंटे से लेक्चर सुन रहे हो पूरे दिन से, तो थोड़ी शाबाशी अपने को दो। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, मेरे कंधे बहुत मजबूत है। खुद को तो दे लो, खुद को शाबाशी नहीं देते, खुद को भी दो। कुछ नहीं कह सकते तो एक वर्ड, 3 वर्ड है, ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल। देन नेक्स्ट, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अच्छा, घुटने में दर्द हो जिसके, अपने घुटने को भी बोलो। पूरा दिन आपका लोड उठाते हैं, वजन बढ़ा के उनका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसको दे रहे हैं? घुटनों को दे रहे हैं। घुटने को लोड ज्यादा हो गया ना, मसल्स थोड़ी वीक हैं, या तो मसल्स को ट्रेन कर लो आप कि वजन ज्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर मसल ट्रेन नहीं करते तो कुछ नहीं, 1 सेकंड के लिए, क्या 30 सेकंड आप अपने घुटनों क्या बोलेंगे? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। भाई मेरे घुटने बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कहावत सुनी है, जैसा सोचेंगे ऐसा ऑटोमेटिक केमिकल चेंजेस आपके होने लगेंगे। ये तो सब विश्वास करते होंगे, नहीं करते? विश्वास करते हैं। जैसा सोचेंगे, एज यू थिंक, बॉडी आपकी ऐसे बनने लगेगी। अब बॉडी आपकी कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगी, वो सिम्टम्स देगी। कोई भी खतरा होगा तो क्या देगी? सिम्टम्स देगी। और वो सिम्टम्स कभी झूठे नहीं होते, बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती आपसे। तो थोड़ी देर के लिए बोलेंगे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। घुटने को बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अभी खा के भी आए ना, बैली रीजन क्या क्या डाइजेशन के लिए हल्का करेंगे भी खाना खाने के बाद, ऑल इज वेल। मैंने इसका नाम रखा है डोलू मोलू, बड़ा संभाल के, बड़ा प्यारा नाम है। आप अपने बैली का कुछ भी नाम रख लीजिए, उसको भी धन्यवाद दीजिए। भाई डाइजेशन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा डाइजेशन क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। सब डाइजेस्ट हो जाएगा जो खाएंगे। जस्ट पॉजिटिव चेंजेस होने लगेंगे केमिकल आपके, छोटे छोटे चेंजेस हैं और कभी भी कर सकते हैं। शोल्डर्स को हो गया। अब देखिए फेस के लिए, थंब को इनसाइड रखिए, नोज और आईज को नहीं करना, बस नोज और आईज पे नहीं करना, छोटा छोटा हल्का हल्का टैप करेंगे। ये देखिए ब्लड का फ्लो, मेन मैं कह रहा हूं ना, एक्सरसाइज कोई भी थेरेपी हो, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना आपका, क्या है मेन कॉन्सेप्ट? ब्लड का फ्लो करना हर एक पार्ट तक। तो कोई भी एक्टिविटी करें, टॉप टू बॉटम, लास्ट फेस पे करो, ऐसे फोरहेड पे, आपकी आंखों के लिए, आपके नोज के लिए, आपके ईयर्स के लिए, पूरी एंटी एक्सरसाइज आपकी। नेक्स्ट थोड़ा कान पकड़ ले, हल्का सा, बस कान भी बैलेंस बनाते हैं आपके, तो कान को हल्का सा पकड़ ले, रिलीज कर दें, हल्का सा बंद करें, रिलीज करें, ऐसे पकड़े, रिलीज करें। और ये मेन जो आपका ये बिल्कुल पार्ट से बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अपने फिंगर्स की टिप से, ये साइनस के पॉइंट्स होते हैं आपके एक्यूप्रेशर के अंदर, ऐसे टैप करिए हल्का हल्का। यही होता है हमारा सहस्रार चक्र, जो सारे हॉर्मोन्स को, जो उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, वो बैलेंस भी करते हैं, वो यहीं पे ही है। तो बोले ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब हल्का सा बस थपकी देनी है ऐसे, ये काम रहना बड़ा जरूरी है। जस्ट बोलें बस 21 टाइम, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। नहीं बोल सकते आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। और भी नहीं बोल सकते तो आई एम पीस, आई एम पीस, पीस, पीस एंड पीस। सारी चीजों का निचोड़ यही है, पीस पे ही काम करना है। एक और चीज, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। तो हंसी से बढ़ के कुछ नहीं है, सभी हंसेंगे जोर से। थैंक यू सो मच। तो कैसे हैं आप सभी? आवाज नहीं आ रही। बहुत अच्छे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे। दोनों हाथ उठाकर कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? खुश रहेंगे, योग करते रहेंगे और मिस कॉन्सेप्शन आप भूल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं 97 क्या 79 डेज कितने होते हैं? 79 डेज, 3 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। पिछले 3 साल से रेगुलर अखंड योग कार्यशाला फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है सबके लिए, कोई निःशुल्क है। चाहे सर्दी हो, तूफान हो, बारिश हो, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, वो कंटिन्यूअस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। टाइमिंग मैम अभी तो 7 to 8, गर्मियों में इसकी 6 to 7। हाँ डिपार्टमेंट में चल रही। अभी आपको और बता दूं मैं आपको, 3 जगह पर चल रही है, आपका जवाहर पार्क में और एक गुलर रोड गली नंबर 1।
फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी एरिया आपके पास सुटेबल पास हो। डिपार्टमेंट में तो है ही सेंटर्स का। सेकंड वन इज जवाहर पार्क, थर्ड वन गोलर रोड गली नंबर 1, वे तो भी जस्ट शुरू हुई है। डिपार्टमेंट में 79 डेज हो गए आज, वो विदाउट नॉन ब्रेक। आप सभी का स्वागत है, प्लीज आप वहां आए और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स आपको लेने हो वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मिल रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू मैम। Good.